of vectors, so we can multiply the vectors in two ways. Either we can find the dot product, also called scalar product. Dot product is also called scalar product, and cross product is also called vector product. Reason is because dot product of two vectors is a scalar quantity, and cross product will be a third vector, it will be a vector quantity. That's why scalar product, because answer will be a scalar. Though we are multiplying two vectors, but even then the answer will be a scalar, which is very surprising. And when we multiply two vectors in this way, when we are taking the cross product, then the answer will be another vector. So that's why it is called a vector product. ठीक है, चलो हम आते हैं डॉट प्रोडक्ट के पे. तो जिनको आपने प्रोडक्ट लेना है उनके बीच में एक डॉट डाल दीजिए, ए डॉट बी वेक्टर. फॉर्मूला इज, if this is vector A, this is vector B, angle is theta, then the formula will be AB cos theta. What is A here? What do you think? A क्या है? Magnitude of first vector. हम यही सिंबल लेते हैं ना, तो I have not put modulus right now, अकेला सिंबल डाल दिया, इसका मतलब ये magnitude. So it is product of magnitudes of two vectors and cosine of smaller angle between them. हमने दोनों वेक्टर्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल बन रहा है उसको लेना, दिस वन. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी विल बी ए बी कॉस थीटा. तो लिखिए इसकी डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स and cosine of smaller angle between them, and cosine of smaller angle between them, cosine of smaller angle between them. अब मैग्नीट्यूड भी एक नंबर होगा, b का भी मैग्नीट्यूड नंबर होगा, cos का एंगल का भी वैल्यू होगी, तो ये आंसर आपका स्केलर आएगा. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट, राइट. इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो. रिजॉल्व b into two components. रिजॉल्व करिए वेक्टर b को. इधर क्या आएगा? b cos थीटा एंड दिस साइड b sin थीटा. ठीक है, तो व्हाट इज दिस b cos थीटा? Component of second vector in the direction of first vector. You can also define this way. So dot product is also the product of magnitude of first vector and component of or projection of second vector in the direction of first vector. आप ऐसे भी कह सकते हो. ठीक है, product of first vector and component of second vector in the direction of first vector. ठीक है, अब सपोज कर लो, लेट अस कैलकुलेट आई डॉट आई. वी नो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है आई कैप. इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू कॉस ऑफ एंगल, दोनों सेम वेक्टर है, एंगल क्या है इनमें? 0 डिग्री. नाउ सिंस दे आर यूनिट वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, cos 0 भी 1 होता है. So I dot I is equal to 1. नोट कर लीजिए, I dot I will be 1, और I dot I को I स्क्वायर भी कह सकते हो. A dot A को आप A स्क्वायर कह सकते हो. So that means I square is 1 और I dot I is 1. Similarly, can you tell me what will be J dot J? J dot J कितना होगा? ये भी 1 होगा. So similarly, K dot K will also be equal to 1. So I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1. Let us check I dot J now. Magnitude of I cap, magnitude of J cap. What is angle between I and J? X and Y axis? 90 degree.
अब एंगल आएगा 90, cos 90 क्या होता है 0. So your I dot j will be 0. Similarly, j dot k will be 0. K dot I will be 0. ये नोट कर लीजिए, हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकते हैं. सिमिलरली आप इनको रिवर्स भी कर सकते हो. j डॉट i भी 0 होगा, k डॉट j भी 0 होगा, i डॉट k भी 0 होगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव. अब वही प्रूव करते हैं. डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव. पहले ये देख लो. हैव अ लुक. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. एनी डाउट? इधर आप. ठीक है. ठीक है. तो dot product is commutative. Let us prove this property. Let us consider A dot B. Formula is AB cos theta. Now let us write B dot A. वो होगा B into A cos theta. अब A B लिख लो या B A लिख लो, एक ही बात है. ठीक है. That is also AB cos theta itself. And what is AB cos theta? A dot B. So dot product of two vectors will always be commutative. Order doesn't matter. Whether we write I dot j or j dot I, that is one and the same thing. चाहे हम उसको I dot j लिखें या j dot I लिखें, no problem. We can write. Okay? Commutative. अब उसके बाद distributive property. Dot product is distributive. A dot B plus C है. When you will open it, A dot B plus A dot C करना पड़ेगा. वही जैसे हम रेगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे. बट डॉट इज वेरी सिग्निफिकेंट. डॉट को आप भूल नहीं सकते. डॉट को इग्नोर नहीं कर सकते. एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट. कौन से वेक्टर हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम? वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. 9th में फॉर्मूला किया था एफ एस कॉस थीटा, तो एफ डॉट एस हो गया ना वो. So that's why work is a scalar quantity because it's a dot product of two vectors. 9th में आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, वो आज समझ आएगी. Same way power is dot product of force and velocity. Power is also dot product of force and velocity. Magnetic flux is dot product of magnetic field and area vector. ये तो चलो आपको +1 में नहीं आएगा. मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वर्क एंड पावर. वर्क एंड पावर ज्यादा उसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे. ओके. एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट. Advantages of dot product of two vectors. First advantage is we can find angle between two vectors. We can find angle between two vectors using this because A dot B is AB cos theta. So to find angle between vectors A and B, cos theta can be written as A dot B over AB. So by solving this, you can find angle between vectors A and B. Whatever is the angle we will get from here.
ठीक है. Second advantage is to check whether the vectors are perpendicular or not. To check whether the vectors are perpendicular to each other or not. If their dot product comes out to be 0, अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और वो 0 आ रहा है, that would mean AB cos theta is 0. अब A और B दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये दोनों ही 0 नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है. That means cos theta is 0, and when does the cos theta become equal to 0? When theta is 90 degrees. That means vector A is perpendicular to vector B. So condition for perpendicularity. This is condition for perpendicularity, that A dot B should be 0. Dot product अगर 0 आ गया इसका मतलब vectors perpendicular. A and B not equal to 0. A and B both are non-zero vectors. ठीक है, ये this is all about dot product. अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं कि एक्चुअली कैसे सॉल्व करोगे आप. देख लो एक बार कर. Yes. The point of application of a force, the point of application of a force F is equal to 6I cap plus 8K cap. इसका मतलब J कंपोनेंट 0, वो आप खुद से लिख सकते हो. Is displaced from the point of application of a force is displaced from A to B. B के कोऑर्डिनेट्स हैं are displaced from A to B. Find the work done. Find the work done. अब यहाँ पे वर्क निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गिवन, हमें पहले वो भी निकालना है. सो वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट. तो यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हैं क्या? R1 R2. R1 होगा I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप. कैन यू राइट द वेक्टर्स इन वेक्टर फॉर्म इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन? ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट. तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ये आपका फर्स्ट पोजीशन वेक्टर हो गया इसका. सेम वे राइट R2. नाउ फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या s वेक्टर. R2 माइनस R1 माइनस माइनस 2I कैप प्लस 2J कैप बस प्लस 0K कैप. यही आ रहा, वो कैसे? अच्छा हाँ, नहीं ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं. So we have found displacement vector as well. Put the values now. 6I cap, 0J cap plus 8K cap dot, ये रब कर दो इधर. वैल्यू पुट कर रही है F डॉट, अभी मैंने S लिखना है, चलो नीचे लिख दे. डॉट माइनस 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 0K कैप लिखना पड़ेगा, वो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा. अब मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि जब कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालना कैसे. इसको अभी यहीं पे छोड़ दो, साइड पे करते हैं.
So two vectors are given in the component form. Ax I cap, ay j cap, az k cap. ये आपका वेक्टर A है और वेक्टर B is also given in the vector form. Let us find their dot product. अब 9 टर्म्स आएंगे जब हम मल्टीप्लाई करोगे. तो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे, पहले मैग्नीट्यूड बाहर निकालो. ax bx i डॉट i. वेक्टर लिखते टाइम बीच में डॉट जरूर है. ऐसे करके 9 टर्म्स लिखिए. फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई दिस टर्म विद 3, then this term with 3, then this term with 3. So you will have 9 terms. So ax bx i dot i ऐसे करके लिखिए 9. हाँ हाँ हाँ, फिर हम वही वैल्यूज पुट कर देंगे. हाँ चलो पहले लिखो इसको. ax by I dot j, ax bz I dot k प्लस अब ये वाली टर्म ay bx j dot I, ay by j dot j, ay bz j dot k प्लस az bx k dot I, az by k dot j, az bz k dot k. चेकआउट पहले ये 9 टर्म सेम आ रही हैं आपकी. Now we calculated value of I dot I, J dot J, K dot K, I dot J, सब वैल्यूज निकाल ली थी, वो पुट कर देते हैं. सिर्फ ये 3 टर्म्स रहेंगी I dot I, J dot J एंड K dot K, क्योंकि इनकी वैल्यू थी 1. I dot J भी 0 था, I dot K, J dot K, K dot J, K dot I, J dot I. ये सारी टर्म्स आपकी वैनिश हो जाएंगी. ओनली यू विल बी लेफ्ट विद दीज 3 डायगोनल टर्म्स. और ये I डॉट I 1 है, J डॉट J 1 है, K डॉट K 1 है. तो सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स यू विल बी लेफ्ट विद. तो आपका आंसर आएगा A डॉट B ax bx प्लस ay by प्लस az bz. तो ये आपका बहुत ही इजी सा फॉर्मूला आ गया कि आपने सिर्फ कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना. आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के बस. तो आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इफ द वेक्टर्स आर गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म. यहां तक कंप्लीट कर लीजिए पहले. क्लियर? अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे. तो आपने क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, प्लस जे कंपोनेंट को जे के साथ 0 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0 -12 plus 0 plus 0. Work done is -12 joule, and you know work done can be negative. So this is your answer, -12 joule. This is your answer, and you see that though we multiply two vectors, answer is a scalar. So this is about dot product of two vectors.
नहीं, ये थोड़ी ना डिराइव करोगे, सीधा फॉर्मूला यूज करो। ओके, नाउ एनी डाउट टू एनीवन? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सेम वे पावर का फॉर्मूला, पावर का भी न्यूमेरिकल हो सकता है ऐसे ही आपका। आपने फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अगर के नहीं, वो शो कर दो एक बार, जो कंपोनेंट मिसिंग है उनका 0 ले लो। ओके, राइट अनदर क्वेश्चन। What is the angle between two vectors? What is the angle between two vectors if their dot product is half the product of their magnitude? Half the product of their magnitude. हाँ, 60 degree. So do as it is said in the question. What is the angle between two vectors if their dot product is half the product of their magnitude? So do as directed. A dot B है AB cos theta, and according to the question they are saying dot product is half the product of magnitudes. ठीक है ना, मैंने पुट कर दो। So cos theta is 1/2, theta is 60 degree. So we have done as they are saying in the question. Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that vector a and b are mutually perpendicular. If it is given a and b are perpendicular, find m. So we know if these vectors are perpendicular, their dot product must be 0. So dot product लेके equal to 0 कर दो। m into 2m minus 2 into m minus 4 into 1 equal to 0, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक आ जाएगी एंड एक्सेप्ट द पॉजिटिव वैल्यू। तो एक मेरे ख्याल से -1 और 2 आ रहा है, कितना आ रहा है वैल्यूज? हाँ, करो सॉल्व, फैक्टर्स बना के वैल्यूज निकालिए। हाँ, 2 और -1 आ रहा है ना, तो एक्सेप्ट पॉजिटिव वैल्यू m इज 2। तो m अगर 2 पुट करेंगे तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर आएंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। माइनस क्या करनी है? माइनस को हम रिजेक्ट कर देंगे, एक ही वैल्यू ले लो। नहीं, टाइम नेगेटिव नहीं ना आना चाहिए, तभी तो। कहाँ नेगेटिव आया? तभी तो हम नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं रहे। तो पॉजिटिव लोगे, हाँ पॉजिटिव। वो तो हम तो देखो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, बट आगे हमने चूज करना है कि वो क्वांटिटी कौन सी, तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। वो तो मैथमेटिक्स में तो आएगी, आपकी हर तरह की वैल्यूज आएंगी, आपने कौन सी सिलेक्ट करनी, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वांटिटी। हाँ 2,
So m is 2. That is your answer. Yuvraj, is it okay? Yeah. Yes, have a look at this. If you have any doubts, you can ask. After this, we have cross product. Cross product of two vectors. वो भी start कर लेते हैं आज ही. Now to write a cross product, we will put a cross between two vectors. We will put a cross. And the formula will be AB sin theta C cap. इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी अटैच्ड होता है. So that's why product of two vectors is a third vector. It's a different vector. कोई और वेक्टर आ रहा है. ठीक है. और उनके मैग्नीट्यूड्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलर एंगल इनटू यूनिट वेक्टर आल्सो, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर्स. तो इसमें डायरेक्शन आ रही है, अगर वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए. तो नोट डाउन द डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ दिस सी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट will be perpendicular to the plane containing vectors a and b. Direction of cross product vector will be perpendicular to the plane containing two vectors. Perpendicular to the plane containing two vectors. Suppose आपका ये और b वेक्टर xy प्लेन में है, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो z एक्सिस के अलोंग होगा. वो थर्ड एक्सिस z एक्सिस के अलोंग होगा. राइट. तो यू कैन use right hand screw rule for this purpose. If this is vector A, this is vector B. ये आपका एंगल है. Right hand screw rule is very similar to Maxwell's right hand thumb rule. तो अगर ये सेंस ऑफ सबटेंडिंग एंगल है, आपका एंगल ऐसे बन रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसे एंगल सबटेंड हो रहा है, तो थंब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा. ठीक है. तो अगर ऐसे बन रहा है एंगल, एंटी क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड है, अगर क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो अपवर्ड है. ये देखिए, ये क्लॉकवाइज था, ये क्या लिया हमने, एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है. ये कौन सा है, ये, हाँ क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज हुआ ना आपका, ये तो आपका ये होगा वेक्टर प्रोडक्ट. सी वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी. अगर आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये होगी आपकी सी वेक्टर की डायरेक्शन, या उसका यूनिट वेक्टर या वेक्टर वही. ये राइट हैंड स्क्रू रूल है. स्क्रू रूल, कॉर्क रूल भी कह सकते हैं इसको. ठीक है. And main thing to note down is it is not commutative. Cross product of two vectors is not commutative. डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, तो हम ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते आप. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल एंड नॉर्मल टू द two vectors, normal to the plane containing two vectors, इन सबका प्रोडक्ट, that is cross product. डेफिनेशन वैसे नहीं आती पूछने, वो कहाँ आएगी, इतने न्यूमेरिकल्स हैं, वो आएंगे. ठीक है ना. तो ये डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए, हाउ वी आर मार्किंग. फाइन. एग्जांपल देख लो. ओमेगा इज बी क्रॉस आर. बी इज इक्वल टू आर ओमेगा ना, उसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, टॉर्क. टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम. ये कुछ एग्जांपल्स है. अब आप आर क्रॉस बी नहीं लिख सकते. यू कांट राइट एफ क्रॉस आर. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑर्डर. कल करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ओवर हो जाएगा हमारा कल. एंड ब्रिंग योर एनसीईआरटी, नहीं प्रोजेक्टाइल कर लेते हैं. So I will be starting with projectile also.
tomorrow. ये एग्जाम्पल नोट कर लो.